Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss payment bank. Payment bank is a aspect which has a definitive objective. And this objective is to increase financial inclusion. That means where normal banking facilities cannot reach, they may be given these facilities through payment banks. These are facilitator of small balance accounts. They may be helping migrant laborers to remit their funds back to their native places. So the purpose of setting payment bank was that if we set up a branch, it involves lot of cost. So if payment bank is allowed to operate, it can operate through a small network and the small balance accounts can be managed. And the technology uses point of sale or POS machines. Any non-bank PPI or mobile company, supermarket chains, public sector entities, they can start the payment banks. Initial response was very good. Number of people come forward to start the payment bank. But at present, only 6 banks are functional. They are Airtel Payment Bank, India Post Payment Bank, Fino Payment Bank, Paytm Payment Bank, Jio Payment Bank, and NSDL Payment Bank. Now, what type of activities they can do? They can only accept demand deposits. That means they can have current accounts or saving account. No lending is permitted. They can only invest. That's why they cannot issue any credit card. Remittance facility is permitted. Payment facility is permitted. Internet banking is permitted. ATM cards are permitted. Earlier day-end limit was 1 lakh per account. Now this is raised to 2 lakh per account. So these are some of the salient features of payment bank from examination point of view as well as interview point of view. So if you want to have good knowledge of banking and finance, you can watch 10 to 15 videos from this playlist. Playlist link is available in description. It will enhance your banking knowledge like anything. Then current affairs. For current affairs, I have provided you a very good source. Link of the source is available in description. Click the link, you will land up on an app. Take current year plan, apply coupon code AA03. You will get 10% discount and access to this plan. Now read this material from the material given on this app. This will help you to clear many competitions through this good source of current affairs. To maintain good health, I have given you another playlist where selected videos are there. Watch these videos, implement ideas contained in these videos and stay healthy. So God bless you all with good health and prosperity. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पर हमने दी है। मकसद है आपकी इन क्षेत्र के अंदर नॉलेज एनहांस करना। 10 से 15 वीडियोस यदि आप रोज देखेंगे, बहुत अच्छी आपकी नॉलेज हो जाएगी। लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में। आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं पेमेंट बैंक। ये क्यों पेमेंट बैंक बनाए गए, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्योंकि बैंकों की शाखाएं कोने कोने तक हैं, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही थी और एक ब्रांच को सेटअप करने में कॉस्ट भी बहुत लगती है। तो पेमेंट बैंक का कंसेप्ट आया है जहां सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे कुछ एलिमेंट्री फैसिलिटीज ऑफ बैंकिंग कस्टमर्स को प्रदान की जाए। तो ये स्मॉल बैलेंस अकाउंट्स होंगे,
माइग्रेंट लेबर आसानी से अपना पैसा रेमिट कर सकती है अपने नेटिव प्लेस को, और इसके अंदर छोटे छोटे वेंडर्स के थ्रू भी पॉस मशीन लगा के इसको किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रमोटर्स थे वो अलाउ किए गए नॉन बैंक पीपीआई, मोबाइल कंपनी, सुपरमार्केट चेन्स, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, और उनको ये अलाउ किया गया कि वो पेमेंट बैंक सेटअप करें। शुरू में काफ़ी संस्थाओं ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, मगर वायबिलिटी ना होने की वजह से अब केवल 6 बैंक इसके अंदर रह गए हैं। ये है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। और ये लिस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है, समय समय पे आपको लेटेस्ट लिस्ट हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले डे एंड बैलेंस इसमें 1 लाख परमिटेड था, रिसेंटली इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, और ये राशि भी समय समय पर परिवर्तित हो सकती है। तो आने वाले समय में क्या नई राशि है उसके पर भी आपको नज़र रखनी होगी। इसके बाद क्या क्या काम ये कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। पहला है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, टर्म डिपॉजिट एफडीज नहीं ले सकते। इसके बाद कोई लैंडिंग नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते, केवल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं इशू कर सकते। पर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। रेमिटेंस फैसिलिटी कस्टमर्स को दे सकते हैं। रेमिटेंस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना। तो पेमेंट बैंक्स एक तरह के कम्प्लीमेंट्री हैं बैंकिंग सिस्टम के, पर जो मेजर रोल है वो बैंक्स ही अदा कर रहे हैं। पेमेंट बैंक केवल एक सपोर्ट हमें दे रहे हैं। अब जहां तक करंट अफेयर का सवाल है, उसके लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा सोर्स बताया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक को आप क्लिक करिए, आप एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप को डाउनलोड करके करंट ईयर का प्लान ले लीजिए। कूपन कोड AA03 इस्तेमाल करिए, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, और करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन नॉलेज से भरी हुई इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल करिए, सब कॉम्पिटिशन्स में आपके काम आएगा। अच्छी सेहत मेंटेन करना हम सबके लिए निहायत ज़रूरी है। इसके लिए भी मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी है, उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हैं। उन वीडियोस को एक एक करके देखिए और उसमें जो आइडियाज़ हैं उनको अपने जीवन में ढालिए, और इस प्रकार आप एक अच्छी सेहत मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप सेहतमंद होंगे तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में और आप अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।